Hello students, how are you all? But today we are going to discuss next topic, that is isomerization reaction. अभी तक हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स डिस्कस कर रहे हैं. आज ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स फिनिश हो जाएंगे बेटा विद दिस लेक्चर. ओके, सो दिस isomerization reaction, what do you mean by isomerization reaction? Iso mean same, mer mean molecule, mean those compounds which have same molecular formula but different arrangement of atoms or groups in the chain are called isomers. तो isomerization reaction में क्या होगा, n alkanes को हीट करेंगे हम बेटा in the presence of anhydrous AlCl3 and HCl, okay, at 573 Kelvin temperature and 35 atmosphere pressure. Under these conditions heat करेंगे, then n alkanes convert into branched chain alkanes. n alkanes, n mean straight chain, normal chain, are heated in the presence of anhydrous AlCl3 and HCl. गैसेस HCl लेते हैं, प्योर HCl यहाँ पर. ओके, at about 573 Kelvin temperature and beta 35 atmosphere pressure. Under these conditions we heat these beta n alkanes, then these convert into branched chain alkanes. These convert into branched chain alkanes. This is isomerization reaction. We can take examples for this beta. For example, we can take n-butane. N-butane. N mean normal chain, straight chain. This is but mean 4 carbon atom, n carbon carbon single bond, वैलेंसी कंप्लीट कर दो बेटा. दिस इज n-butane. इसको अगर हीट करें हम अंडर दीज कंडीशंस, anhydrous AlCl3 and HCl at about 573 Kelvin temperature and 35 atmosphere pressure. Anhydrous mean dry. Anhydrous mean dry. There is no drop of water. बिल्कुल dry aluminum chloride है. Okay. Now, what happens? N-butane convert into branched chain alkane. Branched chain alkane क्या बन सकता है इसका? Isobutane. N-butane convert into isobutane. This 4 carbon atom, 4 carbon atom हो गए. वैलेंसी पूरी कर दो बेटा. These are isomers of each other. This isobutane, कॉमन नेम है ये isobutane. ठीक है, मोलकुलर फॉर्मूला सेम है बट अरेंजमेंट में डिफर करते हैं इन द चेन. सेकेंड एग्जांपल वी कैन टेक, दैट इज बेटा एन हेक्सेन. इफ यू टेक एन हेक्सेन, हेक्स मीन 6, 1 2 3 4 5 6. एन मीन स्ट्रेट चेन और नॉर्मल चेन. ऑल दीज 6 कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन स्ट्रेट लाइन. वैलेंसीज हम कंप्लीट कर देते हैं कार्बन की बेटा by using hydrogen atoms. n-hexane again, इसको अगर हम हीट करते हैं बेटा अंडर anhydrous conditions, क्या in the presence of anhydrous AlCl3 and HCl at about 573 Kelvin temperature and 35 atmosphere pressure. These conditions सेम रहेंगी भाई. What happens? ब्रांच चेन एल्केन्स में कन्वर्ट होगा. ब्रांचिंग अगर करेंगे यहाँ पर हम तो 2 आइसोमर्स आर पॉसिबल है. देखो कैसे, 1 2 3 4 5. 6th वाला कार्बन यहाँ पर भी लगा सकते हैं सेकंड पर, प्लस 1 2 3 4 5. यहाँ पर भी थर्ड वाले कार्बन पर भी तो लगा सकते हैं हम इसको. यस और नो? तो बेटा सेकंड कार्बन एटम पे भी आ सकता है सब्स्टिट्यूएंट और थर्ड कार्बन एटम पे भी आ सकता है. दीज 2 आइसोमर्स आर पॉसिबल हेयर. ओके, वैलेंसी पूरी कर दो बेटा. यहाँ 3 हाइड्रोजन आएंगे, हेयर 3 हाइड्रोजन, हेयर 1 हाइड्रोजन, हेयर 2 हाइड्रोजन. कैसे पता चलता है आपको? चेक कर लिया करो ना. कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ऑलरेडी 2 बॉन्ड बने हुए हैं. बट डेफिशिएंसी कितने की है? 2 की, तो उतने हाइड्रोजन लगा दिया आपने. दिस इज CH3, दिस इज CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH हो गया, ये CH3 हो गया. दिस इज CH, दिस इज CH3. नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 1 2 3 4 5 2 methyl pentane. व्हाट इज दिस? 2 methyl pentane. एंड व्हाट इज दिस? 3 मिथाइल 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर, इधर से करो चाहे 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे है.
ठीक है ना। दिस इज 3 मिथाइल पेंटेन। ओके, so these are the branch chain isomers of an hexane. So you can understand easily that how we can convert n alkanes into branch chain alkanes. Okay, now cyclization and aromatization of alkanes. What happens in this reaction? In this reaction beta n alkanes को हम हीट करेंगे in the presence of क्रोमियम ऑक्साइड। ओके, मीन डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा इनका। ओके, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, मीन एक टाइप से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, ठीक है। या फिर हम ले सकते हैं बेटा डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स V2O5, और वी कैन टेक बेटा मोलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3 स्पॉटेड ओवर एलुमिना Al2O3। दिस इनके प्रेजेंस में हम हीट करेंगे एट अबाउट 773 केल्विन टेम्परेचर एंड 10 to 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर। दीज कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एन एल्केन्स इनटू साइक्लोएल्केन्स। ये कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, साइक्लाइजेशन हो जाएगा इसका, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा यहाँ से एंड साइक्लोएल्केन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। एन एल्केन्स कन्वर्ट इनटू साइक्लोएल्केन्स। इनको फर्दर हीट करेंगे हम। We heat these further under similar conditions again 773 केल्विन टेम्परेचर 10 to 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर। फिर से सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे बेटा हम यहाँ पर, एंड कोई भी ले लो इनमें से एनी वन आउट ऑफ दीज 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। वी कैन टेक एनी वन। ओके, आइदर दिस और दिस और दिस, मैंने कोमा लगा के लिखे, मैंने सपोज एक ले लिया यहाँ पर। ओके, व्हाट हैपेंस? दीज कन्वर्ट इनटू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अगेन हाइड्रोजन का रिमूवल होगा यहाँ पर। कितने हाइड्रोजन रिमूव होंगे वो देखा जाएगा यहाँ पर। ओके, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर रिमूव्ड, ये हम यहाँ पर x की जगह पुट कर देंगे, देखेंगे ध्यान से। अब मैं एग्जांपल लूंगा यहाँ पर। ओके, सपोज वी आर गोइंग टू टेक एन हेक्सेन। एन हेक्सेन को मैं बेंड कर देता हूँ 1 कार्बन एटम, 2nd कार्बन एटम, 3rd, 4th, 5th and this is 6th कार्बन एटम। सपोज दिस इज एन हेक्सेन। मैंने क्या किया बेटा, एन हेक्सेन को टर्मिनल कार्बन एटम को पकड़ के बेंड कर दिया ऐसे, जैसे एक वायर हो, इफ यू टेक एनी वायर और वायर के दोनों टर्मिनल को पकड़ के ऐसे बेंड कर देते हैं। पॉइंट आस इन द सेम वे यू कैन बेंड दिस। हेयर इज कार्बन, हेयर इज कार्बन, ईच एंड एवरी पॉइंट इंडिकेट कार्बन एटम। वैलेंसी पूरी करेंगे हाइड्रोजन से, ये भी CH3, ये भी CH3, यहाँ पर CH2 CH2 CH2, ठीक है ना, सॉरी हाँ ठीक है, CH2 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 CH2। नाउ क्या होगा, इफ वी हीट दिस एन हेक्सेन अंडर दीज कंडीशंस, कोई भी लेवल में से सपोज क्रोमियम ऑक्साइड ले लिया, डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड ले लिया, या फिर आपने मोलिब्डेनम ऑक्साइड ले लिया, ठीक है ना, एनी वन आउट ऑफ दीज 3 यू कैन टेक एनी वन स्पॉटेड ओवर एलुमिना। एलुमिना क्या होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हीट करेंगे 773 केल्विन टेम्परेचर एंड 10 to 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अंडर दीज कंडीशंस वी हीट दिस एन हेक्सेन। व्हाट हैपेंस बेटा, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। मैंने कहा था CH2H कर देते हैं इसको, दिस इज CH2H कर देते हैं। हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विल डिसोसिएट हेयर, इन दिस ऑल्सो, इन दिस ऑल्सो, 1 इलेक्ट्रॉन हेयर, अनदर हेयर, 1 इलेक्ट्रॉन हेयर, अनदर हेयर। H2 निकल जाएगा बेटा यहाँ से, H2 गैस कम्स आउट एंड व्हाट वी गेट, CH2 पर भी रेडिकल, CH2 पर रेडिकल बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में, इट बिकम्स साइक्लोहेक्सेन। दिस इट बिकम्स साइक्लोहेक्सेन, दिस वन बेटा। ओके, दिस इज साइक्लोहेक्सेन हो गया। नाउ इसको फर्दर हीट करेंगे अंडर दीज कंडीशंस। फर्दर हीट करेंगे बेटा, क्रोमियम ऑक्साइड ले सकते हैं, डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड ले सकते हैं, वी कैन टेक बेटा मोलिब्डेनम ऑक्साइड ले सकते हैं, स्पॉटेड ओवर एलुमिना अगेन, Al2O3 एट अबाउट 773 केल्विन टेम्परेचर एंड 10 to 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर। कंडीशंस तो लर्न हो जाती हैं, है ना। आप 1-2 बार करके देखोगे, रिएक्शन को बार बार लिख के देखोगे तो कंडीशन लर्न हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। ध्यान रखना, इस पॉइंट को माइंड में रखना बिल्कुल। नाउ व्हाट हैपेंस, क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन का फर्दर डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगा।
Okay, what happens here beta? You know very well at each and every point there is one carbon atom and कार्बन की वैलेंसी पूरी करेंगे तो दो दो हाइड्रोजन आएंगे यहाँ पर CH2 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 ग्रुपिंग है यहाँ पर. ओके, मीन हेयर इन दिस वे CH C पर HH, ठीक है, हेयर ऑल्सो HH, हेयर ऑल्सो HH, हेयर ऑल्सो HH, दिस वन. क्या हो सकता है? व्हाट वी कैन डू, जो नेबरिंग कार्बन एटम से हाइड्रोजन एक एक हाइड्रोजन आपको रिमूव करना है. यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिसेट हो जाएगा. अगेन अगर यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा. सेम इस कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर चुके हैं तो नेक्स्ट पे आ जाओ. इस पर इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, इससे एक हाइड्रोजन निकालेंगे, यहाँ से H2. नेबरिंग नियर बाई वाले हाइड्रोजन एटम आप चूज कर लेना, आपके लिए ईजी होगा अंडरस्टैंड करना. ओके, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा. अब इस कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर चुके हैं हम, इस कार्बन पर आ जाते हैं. इस पर एक दो हैं, एक रिमूव करना है, इससे भी एक रिमूव करना, तो ये नेबर वाले ले लेते हैं दिस. ओके, इन दिस वे यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा. हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स, हाउ मेनी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड? 1 2 3 3 H2 कम्स आउट, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कम्स आउट. ये क्या बन गया? व्हाट इज दिस? बेंजीन बन गया बेटा. ये तो बेंजीन बन गया भाई. ठीक है, बेंजीन इज फॉर्म. डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड बन गए हैं बेटा. एंड द हाइड्रोकार्बन्स विच हैव डबल एंड सिंगल बॉन्ड एट ऑल्टरनेट पोजीशन आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. और अगर 6 मेंबर रिंग है हैविंग डबल एंड सिंगल बॉन्ड एट ऑल्टरनेट पोजीशन, दिस इज बेंजीन. क्लियर? बिल्कुल इजी एग्जांपल, कुछ भी नहीं है. ओके, अब अनदर एग्जांपल ले सकते हैं. कोई बोलता है कि भाई नहीं हमें एन हेक्सेन नहीं, हम एन हेप्टेन ले ले तो क्या हो? अगर हम एन हेप्टेन ले लेते हैं देन अगेन व्हाट हैपन्स बेटा? एक पॉइंट को माइंड में रखना कि आपको रिंग 6 मेंबर ही बनाना है. बिकॉज 6 मेंबर रिंग जो होता है बेटा, दैट हैज मिनिमम एंगल स्ट्रेन. ओके, एंगल स्ट्रेन मीन जो एंगल होता है बॉन्ड एंगल बिटवीन नेबरिंग बॉन्ड्स, वहाँ पर रिपल्सन्स मिनिमम होता है 6 मेंबर रिंग के अंदर. ओके, एन हेप्टेन बनाया तो ये CH3 यहाँ लगा दिया मैंने. दिस देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया. ठीक है ना? अब एक हाइड्रोजन को रिमूव करके हमने ये CH3 लगा दिया, ये बन गया एन हेप्टेन. क्लियर? फिर से वही, तो टर्मिनल कार्बन एटम इधर से उसका हाइड्रोजन जाएगा और इसमें से सेकंड वाले कार्बन एटम का इधर से बेटा 6 मेंबर रिंग अगर आपको बनाना है देन H2 कम्स आउट फिर से. एंड व्हाट हैपन्स, यहाँ पर क्या आ गया? देखो एक हाइड्रोजन को रिमूव करके हमने CH3 लगाया था, यहाँ पर क्या आ जाएगा? दिस इज CH3. ठीक है, क्या बन गया ये? 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये हो गया 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन. दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड हियर. इसको फर्दर हीट कर दिया, सेम उसी मेथड से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे बेटा. एंड व्हाट हैपन्स, बेंजीन पर CH3 आ जाएगा और बेंजीन पर अगर CH3 लगा देते हैं सो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज टोल्यूइन. नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज टोल्यूइन और वी कैन से मिथाइल बेंजीन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड methyl benzene. This is also called methyl benzene. Okay, so in this way we can complete this reaction beta, cyclization and aromatization of alkanes. Now next reaction and last reaction of this topic, that is beta pyrolysis. So what do you mean by pyrolysis of alkanes? Pyro, what is related to heat. हमेशा माइंड में रखना है पॉइंट, कहीं भी आ जाए. फिर said this word in 2 parts. First part is pyro. Pyro what is related to heat. Okay, तो एल्केन्स का पायरोलिसिस क्या करेंगे? हीट करेंगे. एल्केन्स तो डिकम्पोज ही होने हैं, सिंपल सा पॉइंट है. सो पायरोलिसिस इज नथिंग बट बेटा डिकम्पोजिशन ऑफ हायर एल्केन्स into smaller hydrocarbons by the action of heat, is called pyrolysis. इसको pyrolysis बोलते हैं, सिंपल पॉइंट है. अब एन एल्केन्स को किस टेम्परेचर पर हीट किया जाए? 773 से 973 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करेंगे. इस रेंज में हम हीट करेंगे इनको बेटा 6 to 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर. देन व्हाट हैपेंस,
these higher alkanes, जो n alkanes होंगे, they gives बेटा स्मॉलर हाइड्रोकार्बन. स्मॉलर हाइड्रोकार्बन में एल्केन जा सकता है, एल्कीन जा सकते हैं, डिफरेंट और बाई प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं. ओके, हायर हाइड्रोकार्बन्स को स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करें. दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड क्रैकिंग. दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड क्रैकिंग. क्रैकिंग का मीनिंग क्या होता है बेटा कि हायर हाइड्रोकार्बन्स को स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में डिकम्पोज किया है हमने. दिस इज कॉल्ड क्रैकिंग. ओके, नाउ दिस इज मेनली यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज. जो क्रैकिंग का प्रोसेस है, दिस इज मेनली यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज. पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज. दिस इज मेनली यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज. वी कैन टेक हायर एल्केन्स. एन हेक्सेन आपने लिया सपोज 1 2 3 4 5 6. एन हेक्सेन हो गया. दिस इज एन हेक्सेन. ओके, इसको हम क्या करेंगे? हीट करेंगे. CH2 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 CH3. वी कैन हीट दिस. हीट करेंगे बेटा अंडर specific conditions, then we get different products. We can heat at about 773 to 973 Kelvin temperature. इस टेम्परेचर रेंज में आप हीट कर सकते हैं इसको. एंड अबाउट 6 to 7 एटमोसफियर प्रेशर. अंडर दीज कंडीशंस वी कैन हीट बेटा. ओके, व्हाट हैपन्स, क्या होगा? देखिए, पॉसिबिलिटीज आर देयर, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आर देयर. क्या पॉसिबिलिटीज होंगी? डिफरेंट पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बेटा. If one hydrogen carbon hydrogen bond from here and one carbon hydrogen bond from here dissociated, then what happens? देखो possibilities बता रहा हूँ. CH, here is CH2 HCH. Okay, if this bond dissociate, this bond dissociate homolytically, then what happens? H2 comes out. H2 निकल गया यहाँ से. 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम वाला एल्कीन बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा. बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन इज हेयर. जब बॉन्ड डिसोसिएट हुआ तो 1 इलेक्ट्रॉन इज, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा दोनों कार्बन को. H2 निकल गया यहाँ से. तो 5 कार्बन वाला एल्कीन पेंटीन बन गया. पेंटीन का फॉर्मूला C5H10 ये लिख दिया मैंने, प्लस H2 पेंटीन. दिस इज फॉर्म्ड पेंटीन. ओके, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? व्हाट इज सेकंड पॉसिबिलिटी? इफ बेटा वी डिसोसिएट दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड, देन व्हाट हैपेंस? वन इलेक्ट्रॉन विल बी हियर, अनदर विल बी हियर. अब की बार इनको डिसोसिएट नहीं कर रहे हैं. अब की बार हम, ये भी CH2 है, दिस इज CH3. ओके, ये कर लिया आपने. अब हमने क्या किया? दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड, इसको डिसोसिएट कर देते हैं. दिस वन इलेक्ट्रॉन हेयर, अनदर हेयर. व्हाट हैपेंस? रेडिकल बन गई. अब स्टेबलाइज करना है तो जिस कार्बन पर रेडिकल आया है उससे नेक्स्ट वाले कार्बन से हाइड्रोजन आपको रिमूव करना है. दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज डिसोसिएटेड. वन इलेक्ट्रॉन हेयर, अनदर हेयर. ओके, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर. ये रेडिकल इसको मिल जाएगा. CH3 इथेन बन जाएगा. एंड दिस इज ब्यूटीन. ब्यूटीन का फॉर्मूला C4H8 प्लस C2H6 इथेन. ब्यूटीन प्लस इथेन. देखो, स्मॉलर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया. और क्या हो सकता है? नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, वी कैन डिसोसिएट दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड. यहाँ से भी तो डिसोसिएट हो सकता है. ये सेकंड पॉसिबिलिटी थी. नाउ वी आर गोइंग टू टेक थर्ड पॉसिबिलिटी. थर्ड पॉसिबिलिटी में क्या होगा? सी हियर, व्हाट हैपेंस इन थर्ड पॉसिबिलिटी? दिस वन रेडिकल इज हियर, अनदर इज हियर. दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड डिसोसिएट. अगेन फिर से वही पॉइंट, आइदर वी कैन डिसोसिएट दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और वी कैन डिसोसिएट दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, दोनों में से कोई एक डिसोसिएट कर सकते हैं. इफ यू डिसोसिएट दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, देन व्हाट हैपेंस? दिस वन क्या होगा? वन इलेक्ट्रॉन इज हेयर, अनदर इज हेयर. CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. ओके, ये H रेडिकल यहाँ पर आ गया. क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. क्या बन गया यहाँ पर? प्रोपीन. एंड दिस इज प्रोपेन. प्रोपीन का फॉर्मूला C3H6 प्लस प्रोपेन C3H8. प्रोपीन एंड प्रोपेन. ओके,
So in this way, different possibilities are there in this cracking or in this pyrolysis of alkanes, and higher alkanes n alkanes are converted into alkanes, alkenes या फिर other byproducts बन सकते हैं. Okay, so this is all about chemical properties of alkanes. Thanks a lot and goodbye.